A very good afternoon to all my students. Welcome to all in Study Online. Student, in my previous videos, I explained the text of the part first and second of the best Christmas present in the world, the first chapter of We Had. Now I am going to explain the meaning of the third part of the best Christmas present in the world. So let's proceed. In the previous part, you have read that how the author has read the letter written by Mr. Macpherson, and what was the content of the letter. That the best Christmas for Mr. Macpherson was they had celebrated the Christmas occasion with the opposite army, and this was the best Christmas present for him, and that he shared with his wife too. Now, in this part, you are going to read the next about what happened to his wife and how did that roll of death came to author. So let's, without wasting much time, let's proceed. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. Now, after reading the letter, author decided that what he had to do. So what did he decide? He decided that he had to give that letter to the owner of that letter. So what he did is he just folded the letter again and kept it in its envelope, and early in the morning he got ready for what he wanted to do. I drove into Bridport. So he went to Bridport. It's a city in England, just a few miles away. And Bridport was just few miles away from author's home. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. And from Bridport, I asked the direction from a boy who was standing over there. The author is telling that when he went to Bridport, when he reached till Bridport, so from there he asked the direction from a boy. House number 12 turned out to be nothing but a burnt-out cell. So what did that boy inform the author? He told that yes, the address you are asking for, this is house number 12, and this house is left nothing. It is just burnt out completely. तो बच्चे ने क्या इन्फॉर्म किया आथर को कि वो हाउस तो पूरी तरीके से जल चुका है. द रूफ गैपिंग, इवन उसके जो छत है वो भी, उसमें भी गैप हो गए हैं, वो भी खुल चुका है पूरी तरीके से. द विंडोज़ बोर्डेड अप, विंडोज़ उसके पूरी तरीके से उखड़ गए हैं, निकल गए हैं. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of Mrs. Macpherson. So what I did when I reached to the address that was written in the letter, so the house was completely destroyed, as the author has informed you. So what did the author do? He asked from the next house that was beside that house. So he asked about the whereabout. Now let me tell you the meaning of the word whereabout. Means उनके बारे में उनका हाल चाल पूछा मिसेस मैकफर्सन का. ऑथर ने पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन को जानता है. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर. तो जो पगल वाला घर था उसमें एक ओल्ड मैन थे, और वो जैसे ही आकर ने उनसे पूछा कि क्या आप मिसेस मैकफर्सन को जानते हैं, तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल उन्हें जानता हूँ. ही न्यू हर वेल, इवन वो मिसेस मैकफर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे. ही सेड दैट मैन his her neighbor, Mrs. Macpherson's neighbors told about her that a lovely old lady, he told me. तो उसने क्या कहा कि हाँ वो एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही प्यारी औरत थी. a bit muddle headed, थोड़ा confused थी. muddle means like a person who always remain confused. So the word muddle headed means confused. But at her age she was entitled to be. फिर उस आदमी ने कहा लेकिन उनकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है. जिस उम्र की वो हो गई थी उस एज में किसी का भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाना, मडल हेडेड हो जाना कॉमन है. wasn't she, है ना, 101 years old, क्योंकि वो 101 ईयर एज की हो गई थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वो घर में ही थी जब इस घर को आग लगी थी. तो नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. फिर उस आदमी ने कहा
कि इवन किसी को ये नहीं मालूम है कि घर को कैसे आग लगी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि घर में आग जो है कैंडल्स के गिरने से लगी होगी। सी यूज कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मिसेस मैकफर्सन्स इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स यूज़ किया करती थी, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा महंगा होता है। द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जब उनके घर को आग लगी तो फायरमैन भी टाइम से ही आ गया था। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, और उस टाइम पे उनको नर्सिंग होम में पहुंचा दिया गया। ही टोल्ड मी, ये सारी चीज़ें उस नेबर उस पड़ोसी ने ऑथर को इन्फॉर्म किया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, उसने कहा कि टाउन के दूसरे साइड में डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस वाले नर्सिंग होम में उन्हें एडमिट कराया गया। Then what did Arthur do after that? I found Burlington House nursing home easily enough. ऑथर कहते हैं कि उसके बाद मैंने बर्लिंगटन हाउस को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। There were paper chains up in the hallways and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. मैंने बर्लिंगटन हाउस को ढूंढ लिया बहुत ही आसानी से। एंड देयर वर पेपर चेंस अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री। जब मैं वहाँ पे गया तो जो बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था उसके हॉल में जो है पेपर के चेन लगे थे, और मतलब बहुत सारे पेपर जैसे आप देखते हैं कि आप नोटिस टाइप के छोटे छोटे पेपर पे उस पर कुछ मैसेजेस लिख करके चेन बनाया गया था। एंड वहाँ पे जो है कि लाइट भी जल रही थी, क्रिसमस ट्री था और जिसके ऊपर लाइट जल रही थी। इन द कॉर्नर ऑफ द lopsided angel on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson's to bring her a Christmas present. तो हम आथर को उनसे मिलना था, तो वो कोई अपना उनको रेफ़र करते कि हाँ मैं उनका रिलेटिव हूँ या कुछ भी, तभी हॉस्पिटल में लोग उनको मिलने देते। तो ऑथर ने उनसे कहा, हॉस्पिटल में उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वो आए हैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने, और उनके पास एक क्रिसमस प्रेजेंट है और वो वही उन्हें देने के लिए आए हैं। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. कह रहा है कि मैं देख सकता था वहाँ से कि किस प्रकार से डाइनिंग रूम में उस क्योंकि ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, नर्सिंग होम था, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो देख सकते थे कि डाइनिंग रूम में सभी लोग पेपर कैप्स पहने हुए थे और प्रे कर रहे गीत गा रहे थे। मतलब वो दे वर सिंगिंग हाइम्स मीन्स वो रिलीजियस सॉन्ग्स को गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो मैट्रॉन था उसने वो देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नचित हुई। She even offered me a mince pie. उसने मुझे क्रिसमस का अवसर था इसलिए उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया। मिन्स पाई इट इज़ अ काइंड ऑफ स्वीट। She walked me along the corridor. वो मेरे साथ कॉरिडोर तक भी मुझे लेकर मिसेस मैकफर्सन तक पहुंचाने के लिए लेके गई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो सी इज़ नॉट प्रॉपर इन प्रॉपर कंडीशन, सी डजंट रिकग्नाइज पीपल प्रॉपरली, सी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो क्या उसने ये भी इन्फॉर्म किया कि वो ठीक नहीं है, आज हमें लग रही थी, इसलिए हमने उन्हें ऐसे ही अकेले छोड़ दिया कि वो रेस्ट कर सकें। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, फिर उसने मुझे बताया कि आपको तो मालूम ही होगा कि इनकी फैमिली में कोई नहीं है, नो वन विजिट, इसलिए इनसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको देखकर बहुत ही खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. उसके बाद वो मुझे कंजर्वेटरी से होकर लेके गई जहाँ पे बहुत सारे चेयर लगे हुए थे और पॉटेड मतलब छोटे छोटे प्लांट्स थे चारों तरफ। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वहाँ पे मैंने देखा कि मिसेस मैकफर्सन एक द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। तो मिसेस मैकफर्सन एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके हाथ
अपने हाथों को वो अपने लैप में फोल्ड की थी। सी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन। उनके बाल बिल्कुल सिल्वर कलर के थे और जिसे उन्होंने एक विस्पी बन से बांध रखा था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन और वो ध्यान से देख रही थी गार्डन की तरफ। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली और वो मेरी तरफ देखी जैसे कि बिल्कुल सी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वन टू कम एंड मीट। So, with a blank eyes, she just looked at me. Happy Christmas, Connie. I went on. फिर मैंने उन्हें विश किया, उनके नाम को एड्रेस करते हुए, जैसे कि उनके हस्बैंड किया करते थे। मैंने उन्हें क्रिसमस की बधाइयाँ दी। आई फाउंड दिस। उसके बाद मैंने बताना शुरू किया कि मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स यू। मुझे लगा कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उनसे बातें कर रहा था उनकी नज़रें कभी भी मेरे ऊपर नहीं टिकी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। इसलिए मैंने वो टिन बॉक्स जिसमें वो लेटर था उसे खोला और उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस became suffused with a sudden glow of happiness। एंड उस क्षण जैसे ही मैंने उन्हें वो टिन बॉक्स खोल करके वो लेटर दिया वैसे ही उनके चेहरे पे चमक आ गई और उन्होंने उस लेटर को पहचान लिया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। फिर मैंने उस डेस्क के बारे में बताया कि कैसे वो मुझे वो डेस्क मुझे मिली। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, कि मुझे ये कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जो कुछ भी उसके आगे मैं बता रहा था उन्हें वो उसे सुन रही थी। एज इफ सी वॉज बिजी इन सीइंग दैट लेटर एंड रीडिंग दैट एज सी हैज़ रिकग्नाइज्ड हर हस्बैंड लेटर्स। फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग। कुछ क्षण के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर्स टिप। बल्कि वो उस लेटर को सहला रही थी अपने हाथों। स्ट्रोक में सहलाना, वो सहला रही थी उस लेटर को बहुत ही जैसे कि ये कोई चाइना डियर हो, मतलब कि बहुत ही नाजुक चीज़ हो। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स। और अचानक से फिर वो मेरे तक आई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ते हुए बोला कि तुमने कहा था कि तुम आओगे क्रिसमस तक डियर, एंड हियर यू आर। और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तुम मेरे लिए इस क्रिसमस में सबसे अच्छे प्रेजेंट हो। वेल क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अपने हस्बैंड के फर्स्ट नेम से उनको एड्रेस करते हुए कि जिम आप मेरे पास आइए और यहाँ बैठ जाइए। आई सेट बिसाइड हर। मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस माई चीक। और उसके बाद उन्होंने मेरे चीक को किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लेटर को हमेशा पढ़ती थी, इनफैक्ट डेली पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं इसे इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को अपने कानों में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और जब मैं इसे पढ़ लेती थी तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि आप मेरे साथ हैं। एंड नाउ यू आर। और देखिए अब आप मेरे पास आ गए हैं। नाउ यू आर बैक। यू कैन यू रीड इट टू मी योर सेल्फ। तो क्या आप इसे मेरे लिए खुद ही पढ़ सकते हैं। वुड यू डू दैट फॉर मी। क्या आप मेरे लिए करेंगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। उन्होंने कहा कि मैं फिर से आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये। एंड देन परहैप्स यू विल हैव सम टी। और उसके बाद शायद हम लोग एक साथ बैठ के चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जपियन ऑल अराउंड। उन्होंने कहा मैंने तो आपके लिए एक बहुत अच्छा केक भी बनाया है, इसका फ्लेवर मार्जपियन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मालूम है कि आपको मार्जिपन फ्लेवर कितना पसंद है। So, student, here your story ends, and this is how you have come to know that with this help of this story you have come to know the feelings, and you know that most of you belong from the army family and the defense family when your fathers are away from you. So you are very well aware of that kind of feelings. How do you feel during whenever your father are there? Uh,
away from you and they are facing any battle against any country, so how is the condition of your family members? It is well known to you. So this is the chapter all about, and I think that it gives a very nice message to all of us that in place of wars, it is better for us to resolve our conflicts, our disputes through games or through other ways. Thank you.